Okay. Thus, the work done depends upon. Thus, the work done depends upon hyphen point number 1. Magnitude of force number 2. Magnitude of displacement and number 3. The angle between force and displacement. Miss, where are you writing? I am not writing, I am just dictating. Miss, can you please Writing will repeat, take. Miss? Okay, you guys have not written, thinking that I would write it. Okay. Yes, Miss. Okay, let me write it. Let me write it. Thus, work done depends upon magnitude of force. Number 2, magnitude of displacement. Number 3, the angle between force and displacement. Is it clear? Yes, miss. Miss done, miss. Okay, okay. किसी का बाकी सबका हो गया? Yes, ma'am. Okay. Acha, let me know ki who is having problem in understanding these 3 points. The work done depends upon magnitude of force, magnitude of displacement, and the angle between force and displacement. Miss, the last point, miss, the angle between force and displacement. Miss, what does The that mean? angle. Acha, turn over your pages. In the last page, I guess you have written W is equals to Fs cos theta. Yes, miss. Yes, miss. So what is cos theta? What is theta? Theta is the angle between F and S, means force and displacement. So Yes, miss. the value of force, if the value of work W is equals to Fs cos theta. So work depends upon, this is the force, it depends on the force, okay. It depends on displacement, very much fine. So this, it depends on cos theta also. So the Yes, miss. cosine of the cosine of the angle between 1 second guys, please hold. Hello. The cosine of angle between force and displacement. Yes, miss. This is a cosine, so definitely it depends upon the angle between, angle means what? Theta. Angle between force and displacement, that is it. Am I clear to everyone? Okay, miss. Everyone? Apurva? Yes, Miss. Right here, Miss. Yes, Miss. Okay. Ishan? Supratim? Any Yes, doubts? miss. No, miss. Doubts are most welcomed in my class. Please have your doubts. No, I guess you guys don't have any doubts. So let's proceed. Give it a heading of some special cases. Let's have something special. Okay.
We are being bored by using the simple ones. Case 1. If the displacement. Acha, let me know. Do you guys know dot product and cross product? Miss, you have asked this before, Miss. No, Miss, we don't have this. No, miss. You guys don't know. Yes, But miss. okay, but I need to teach you guys. Acha, integration and differentiation. Do you have any idea of integration Miss, and that's in class differentiation? 12, Miss. No, Miss, no way. That's no, that's definitely in class 12. But while teaching you physics, always remember physics is one step ahead of maths. Okay, please take it in mind. In CBSE, what differentiation, sorry, integration is in class 12th, but in physics, we need to study it in class 11 only. So मैथ्स में जो चीज एक क्लास पहले पढ़ाई जाती है वो फिजिक्स में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं. तो as in context of teaching you in the ICSE board, what I have got to know that I need to give you a brief introduction of differentiation and integration, not the wholesome process, because you guys are not well mature to take those things in your mind, but a brief introduction is required to move on. Okay, a little bit of knowledge. So physics is always ahead there. Remember one thing, physics teachers can teach maths as well as physics, but maths teachers cannot teach physics. Okay, physics is combination of physics and maths. So that's why physics becomes a more complex subject. Okay. So I need to teach you guys. Acha, you guys are comfortable for me taking extra classes during the weekdays, during the daytime? Ma'am, Miss, I don't have any problem. Miss, I don't have at all, Miss. These are the only tuitions that I take, Miss. Saturday, Sunday, rest all are free. Ma'am, same here. Guys, Daytime means we do not have any problem. daytime. Ma'am, but Daytime. schools are there. Now it's अभी for तो नहीं. हाँ, Miss- I am asking for the only for the summer holidays only. I need 2 to 3 classes for you guys to overcome the lagging that you have lagged in your syllabus. You guys are lagging behind in your syllabus. So I need 2 classes are more than enough for me to take up that speed. Miss, So I if I told sir, take your, Miss, I told sir that, Hmm. sir, we are going at a very slow speed, sir. We have yes, to yes, pace up. yes. हाँ, सर बोले that's कोई बात नहीं बच्चा कर लेंगे. हाँ, कर तो लेंगे ही, बिल्कुल कर लेंगे, करना तो है ही. बट थोड़ा सा आई गेस आप लोगों की फिजिक्स क्लासेस पहले नहीं हुई है ना, काफी टाइम से फिजिक्स क्लासेस नहीं हो रही थी. No, Miss. तो Every Sunday we do have, Miss, but only हाँ, one chapter has been completed. अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेंगे. तो करने के लिए अब हम मुझे लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लासेस. तो इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे टाइम ना, तो आई लेट यू नो इन द ग्रुप till tonight. I am a bit confused about my timetable, so I will let you know tonight अगर क्लासेस होती हैं कि नहीं. अदरवाइज एक दिन पहले आप लोगों को ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी. That will be the extra classes only. This class time is fixed. The Sunday one is fixed. Okay. Extra classes I will adjust accordingly. Okay. So please do come and join. उसमें मैं बहुत सारा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज एज फार एज आई नो टिल नाउ ये खत्म हो जाना चाहिए था चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट. ओके, चलो कहाँ थे हम लोग? वेर वी इफ द डिस्प्लेसमेंट हाँ इज इन द direction of force, that is, अच्छा मुझे बात बताओ, if the displacement is in the direction of force, then what will be the value of theta? Is 0. Very good. Theta equals to 0 degree. Then cos theta will be equal to, if theta 0, cos theta 1, is 1, cos 0 degree 1. very good. Then W is equals to F into S. Cos theta is 1. Okay. Yes, miss.
Therefore, the work done is positive. Clear? Yes. Any doubt? Any doubt? Any other student? Supratim, Aryan, Abhijit? No, miss. क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये वाला? Yes, miss, clear. Yes, miss. Yes. चलो, okay. Let's have the case 2. If the displacement, अच्छा, sorry, cite me some examples of case 1 na. Yes, miss. Why didn't you guys asked me that how if the work done is positive, ma'am, please give me some examples? That's your responsibility. You guys should ask me examples. बताओ मुझे. The work done is positive. Examples मुझे simple examples बताओ. The चलो. body is falling under gravity. हाँ? If a body is falling under gravity, is one of the. Very good. Next examples. Next, any example? अपूर्व speak out बेटा. बोलिए. Miss, Tera, Miss, I cannot have any examples. Miss, just pushing a box on a platform. This pushing of this pen also. Anything out Yes, there. miss, that's right. Each and every work is positive here. Okay, this is a simple one. Okay, chalo, let's proceed. If the displacement is normal to the direction. Acha, please write the full words. I'm using the abbreviations. You guys don't use. Of force. That is theta equals to कितना होगा? The displacement is normal. Normal means It's 90 degree. Perpendicular. perpendicular. Then theta would be Then 90 degree. 90 degree. Cos 90 degree. And then cos 90 Then is 0. 0. Cos 90 is 0. 1. who said 1? Ma'am, Who- Abhijit. Abhijit. Very good, beta. Wow. How cos 90 is 1? Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Cos 90 is 0. Therefore, W is equals to Fs cos theta. Cos 90 is 0 is equals to Fs cos 90 degree is equal to 0. है ना? W equals to 0 आ गया यहाँ पे. Therefore, work done is 0. Acha, can you cite me an example of where the work done is 0? Not 0 in that sense ki displacement is 0. I need an example where the angle is 90 degree. It's a man who's putting a load and going in a horizontal ground. He's not doing a force under. He's not doing a force against the gravity. You can consider it the force acquired by, means he is having a load, right, in his hand. Yes, miss. With that force, the force is 0. And another example. Ma'am, pulley. Hmm? Pulley with weight in his pulley. head. And moving. Ma'am, until he Pulley. keeps weight down. We need displacement. If he is standing, we don't have any displacement. So Yes, ultimately, there will be no questions of theta, right? If a coolie is having a weight on his head and he needs to move, in which direction? Please, response. Miss in front, miss in the front, miss going. Means in the horizontal, Horizontal. Yes, miss, horizontally. Yes, miss.
Miss, Okay, very good. gravity is pulling it downwards, so the gravity and the movement of the man, it's making a 90 Very degree good. angle. Very So, good. Very miss, and good. the movement Very of good. Earth, miss, around the sun. Miss, the sun, it provides the Ha, gravitation, which that's acts as a force, which is 90 degree. see, I'm giving you a practical example. Apurva, how much did you score in your class 9? It's very miserably, miss. Miss, this time I'm being, it's very miserably, miss. फिर भी lump sum? Miss, I don't know, miss, I don't remember any marks only, miss. No marks was legendary, miss. No, not about the legendary. I just want to know that you were placed amongst, was that above 90? No, miss. Miss, I don't remember. Miss, I have to take out the miss, report card, miss. Miss, I will tell you in 10 But minutes, miss, for sure. Miss, exactly, each and Acha, every mark. oh, okay, no need. I'm just asking just because you guys are responding na. Ahan, Apurva, Abhijit is also trying. I just want to know that you guys, how much do you scored? Because you guys are admitted in the school, in this my school, so you you have not faced any test yet. So I wanted to know that how much marks do you score? Acha, let it be. It does not makes any difference. Ma'am, See, I can see my marks, but it Huh. was online exam. So you can say how. It was Okay, 85 chalo. out of. That's a very honest. That's a very honest thing. That's a very honest reply, and that I liked it. It's okay. Chalo. No, miss, If but you are, some boys did have, miss, the option to choose offline, miss, but they did not choose. Miss, they miss. had options. What I remember that in ICSE boards, offline exams were taken for the annual one. Half yearly was on the online mode, and annual exams were held offline in January or February till the corona cases were very low. I guess so because I have that knowledge that in ICSE board, we CBSE ones, we don't took any offline exams, but the ICSE ones, I have an idea that you guys appeared for the online exams. So there might be. Our school gave us option. Acha, your school gave you options. Okay, that's very good. So you must have opted for the online ones, right? Each and every student has a No, favorite of the miss, me, online. miss, offline. You offline. Your parents are, that means, very much attentive towards you, and must be they have forced you for the offline exams. If I'm not Exactly, wrong. miss. So what Ah. else can happen? This happens in the most of the cases. Okay, I know that. Chalo, this is for the example. The motion of an object. You are standing here. Take care. Each one of you is standing here. You have tied a string in your hand, and you are rotating the string, and the string is attached with a stone at this end, and you are rotating it in a circular motion. Okay, clear? At this point, at particular each and every point, what is the displacement of the object? This is the 90 degree. What is the Miss, direction of the R. displacement? 90 degree. Yes, miss, This 90. is the tangent. Yes, miss. This is the tangent. This is the tangent. Yes, miss. This is the tangent. Okay. So at each and every point, the displacement, the direction of displacement is perpendicular, means 90 degree, and you are standing here, means this is the angle of 90 degree. Okay. So the angle between force, you are applying force from here, force and displacement is 90 degree. So what will be the resultant work done? Resultant work done will be 0. Am I able to make you guys clear by showing it on a diagram? Yes, miss. Yes, miss. Yes, Oh, miss. okay. Chalo. What is the case 2? We are done with the 2 special cases. Chalo, right here. Conditions of 0 work done. Number 1, when there is
no displacement. Number 2, when displacement is normal to the direction of force. अच्छा देखो अब यहाँ केस 2 से क्या आ रहा है, हमारा क्या निकल के आ रहा है. जीरो वर्क डन के लिए हमारा 2 कंडीशंस बन रहा है. Last condition we had studied in our previous class, in our last class. The first condition, this is when there is no displacement. We know agar we have the expression W is equals to Fs cos theta. Force cannot be zero because when you are applying force, then only work done is possible. If you are not applying force, there is no scene of work. When you are not applying force, there will be no scene of work done. So force will always be present. The cases can be either this can be 0 or this can be 0. So S can when S is 0, matlab whenever the displacement is not there, like we are pushing a wall, the wall is not moving. So there is in that case there is no displacement. So in that case the work done will be 0. And the second case comes when the displacement is normal to the direction of force. Means we have the cosine of the angle between force and displacement. The cosine of angle between force and displacement is 0 only when the value of theta is 90 degree. Cos 90 is only 0. That means the theta should always be 90 degree in case to make the work done 0. तो cosine of angle है, तो theta 0 होने से अगर ये work done 0 नहीं होगा. Theta 0 अगर होता है तो work done will be positive, but theta would be 90 degree when the displacement is normal. It should be 90 degree in order to make the work done 0. Am I clear to everyone? Yes, miss. Everyone, why only one student is Yes, miss. okay, chalo. Let's have the third case. Let's have the third case, special case, third case. Eight, okay. If the displacement is in a direction opposite to the force, that is theta कितना होगा यहाँ पे? It's 180 degree. कौन बोला ये? Miss Apurva. अपूर्व, वेरी गुड. अभिजीत ने भी बोला ना शायद, आहान था वो. Miss मैं था. अभिजीत, अच्छा, ओके. अपूर्वा एंड अभिजीत, ओके, वेरी गुड. 180 डिग्री. किसी को समझाना पड़ेगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज इन अ डायरेक्शन. अब बोल रहा है कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में. वेट, ये एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है. इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर, मतलब मैं यहाँ पे, तुम लोग यहाँ खड़े हो, नॉट मी, you guys are standing here, okay, and you are pulling this block towards yourself. In spite of moving towards you, this block is sliding in this direction, okay. तो force तो this direction में हो गया, displacement is going in this direction. So what will be the angle between force and displacement? 180 degree. Am I clear? Yes, miss. This is the meaning of this statement. If the displacement
is normal, oh acha, is in a direction opposite to force. Force is in this direction, displacement is in this direction. मतलब अगर opposite हो गया तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री. अच्छा, then cos 180 डिग्री is, किसी को आइडिया है cos 180 कितना होगा? ऐसे बुक में तो दिया ही हुआ है -1. अच्छा, बुक में दिया हुआ है. cos 180 का वैल्यू निकालना तो तुम लोग सीखोगे नहीं, वो मैथ्स में सीखोगे क्लास 11th में. सी देखो, ये क्या है ना, ये मैथ्स की चीज है क्लास 11 की, बट हमें अभी यूज करनी पड़ रही है. तो इसलिए जब आप 11 में पहुंचोगे और जब 180 डिग्री पढ़ना शुरू करोगे, cos 180 डिग्री भी होता है, उससे पहले आप लोग फिजिक्स में 9th में पढ़ चुके हो कि cos 180 डिग्री इज ऑल्सो अ वैल्यू एंड इस वैल्यू इज -1. क्लियर? मतलब जो चीज आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे वो बिफोर हैंड हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ ही लेना पड़ता है. दैट्स -1. तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W इज इक्वल्स टू fs cos थीटा, तो fs -1 मतलब -fs. Am I clear? Yes, miss. This happens in the case when the force opposes the motion or it tries to stop the moving object. अच्छा, एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक है, this block is going in this direction, मतलब you are pulling in this direction, the block is going in this direction, ये तो इसके अपोज में कर रहा है ना. This is the opposite direction, these are opposing each other, right? Means if the this force, means this displacement is trying to stop the object from moving. Okay, so this case happens when the force opposes the motion or it tries to stop the moving object. Okay, किसी को कोई Yes. डाउट? मैम एक डाउट है. हाँ, बोलो बोलो. मैम अगर ये अपहिल यानी कि स्लोप में या फिर अपहिल में ले जाने जाएंगे, उसमें भी तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट साइड्स होता है, लेकिन वो 180 होगा. अपहिल में अगर लेकर जाओगे और तुम अगर, मीन्स यू आर ट्राइंग टू से इन दिस केस इन एन इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर ट्राइंग टू पुल इट हियर, राइट? यस मैम. हाँ, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यू, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारे साथ मूव कर रहा है तो ये तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. बट इन केस यू आर ट्राइंग टू पुल एन ऑब्जेक्ट बट इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, वो ऑब्जेक्ट तुम खींच के ले ही नहीं जा पा रहे हो, वो नीचे चला जा रहा है, दैट मीन्स दैट वर्क इज नेगेटिव. एंड इफ इट इज गोइंग टूवर्ड्स यू, डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तुम्हारी तरफ, तब तो वो पॉजिटिव है, तब तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हारी तरफ हो रहा है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री. तो अगर 0 डिग्री हुआ तो दैट विल बी द पॉजिटिव वन. एंड इन केस यू आर ट्राइंग टू, मतलब तुम फोर्स देने की कोशिश कर रहे हो उसको ऊपर ले जाने के लिए, बट ऑपोजिटली वो चला जा रहा है, तुम्हारे में उतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम उसको इस डायरेक्शन में लेके जा पाओ, और ये स्लाइड करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है, देन दैट विल बी द 180 डिग्री वन, और फिर वहां पर वो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा. एम आई क्लियर? यस मैम. Yes, miss. Yes, miss. Okay, okay. Do you guys have any practical example related to this case? This case 3? Yes, miss. That the force of friction means when we try. Miss, that is also given in the book, miss. That is why I did not wanted to include that. Yes, miss. Okay, force of friction, that is a very common example. Rest examples I don't have in my mind. I want you guys It's to only speak out. gravity and friction, miss, they can do this kind of opposite
Which I don't हाँ, know. this, हाँ, gravity, friction, or you might call to be a motion of a spring. It sometimes goes in opposite direction. Else तो I Miss, don't what, miss? remember it right. Spring. मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है. Yes, miss. अच्छा रुको. अच्छा अभी क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज? Yes मैम. हाँ miss, हाँ miss. हमेशा भी हाँ हाँ ओके. हाँ ओके. ग्रेविटी में ही तो हो सकता है अगर हम लोग बॉल ऊपर फेंकें, मतलब इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन बोलेगा? सुप्रतिम इज वेरी क्वाइट. सुप्रतिम प्लीज कम. Yes, miss. हाँ यस दैट्स वेरी गुड. दिस इज अ बिल्डिंग. ओके. I made a very thin building. Okay, it's okay. This ball is been dropped from this building towards this direction, towards the ground, and at the same time, after this, the ball goes towards at a half of this distance. Okay, till here, this is h. This direction, this distance is h completely, and this is h by 2. मतलब ये बॉल को यहाँ से तुम यहाँ खड़े हो. ओके, सुप्रतिम Yes, इज yes, yes, स्टैंडिंग miss. हियर. Understood. Understood. हाँ, Supratim is standing here. He drops this ball. He drops his ball in this direction. The ball comes and hits the ground. It comes and hits the ground, and after hitting the ground, it bounces back to the half of its height. Means to the half of the height of the building. Okay, Supratim, can you let me know what is the total work done? Each and everyone solve it and let me know in the chat box. No one is going to answer me. No one is going to unmute themselves. I am keeping my chat box open. And Supratim, you can speak up to me. किसी का नहीं बना अभी तक? हाँ, एक काम करो, इसको क्वेश्चन डाल के ले लो तो अपने में. क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना. क्वेश्चन रिपीट करूं? चलो ड्राइंग क्लियर करना. मैं इसमें नहीं लिखा रही हूँ बिकॉज मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं है. मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन फ्रेम करा है, तो मैं बता दे रही हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है. दिस इज अ बिल्डिंग. ओके, suppose you are standing here on the topmost floor of the building. You have thrown a ball and the ball has the ball is hitting the ground. Just immediately after hitting the ground, the ball goes up and it bounces back to the height of to the half height of the building. Means the height of the building was h and the ball has bounced back till h by 2, means half height of the building. Okay, so let me know the total work done. The total work done in the complete process. सुप्रतिम में समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? अपूर्व, वेरी गुड, very good, very good. Miss, I had sent it a few minutes earlier only, miss, but then I saw miss PCMB, miss, I had to send to PCMB 3. Yes, Then you I- need to send it to me. Supratim, you are not PCMB 3. understanding. चलो अपूर्व, it's clear to you. सुप्रतिम, क्या समझ में नहीं आ रहा है? Talk to me. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया या कंसेप्ट आंसर नहीं आ रहा है? मिस आंसर नहीं आ रहा. आंसर क्वेश्चन समझ में आया? आहान Yes, क्यों नहीं miss. आया अभी तक आंसर? आहान आहान ने आंसर किया. वेट, सेंड कर दिया. हाँ, आहान जो ये आंसर है ना, उसको थोड़ा सा और आप इलेबोरेट कर सकते हो. द एफ एंड एच
यू आर राइट, यू आर वेरी मच राइट, नो इश्यूज, बट उसको थोड़ा सा और अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ. वी नो व्हाट इज Okay, द miss, वैल्यू I'm ऑफ writing एफ. it. Fine. वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ. फोर्स की वैल्यूज हमें यहाँ पता है, so you can more specifically write it. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ईशान, सुप्रतिम को तो समझ में नहीं आया, चलो सुप्रतिम को मैं बता दूंगी. ईशान, अभिजीत, अच्छा कोई और था ना हमारी क्लास में? समवन लेफ्ट? यस मिस, कोई आर्यन बोल के कोई था. कोई आर्यन था, हाँ आर्यन था, ही लेफ्ट. ईशान टेक्स्टेड. यू आर नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो गया ईशान का. चलो कोई ना, आई विल मेक इट क्लियर. थोड़ा सा ईशान गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया ईशान का. बाकी लोग कहाँ हैं? अभिजीत, अभिजीत, क्या समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है? मैम आंसर नहीं आ रहा. आंसर नहीं आ रहा, चलो मैं बताती मिस 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 हूँ. हाँ बोलो. मिस हाँ जिस हाँ तरह से बोलो. आंसर आया मिस हम समझा दें मिस, मिस करेक्ट कर दीजिएगा. हाँ बोलो, बिल्कुल तुम बोलो. मिस दो तरीके से हो सकता है मिस. एक तो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर h और h माइनस h/2 है, तो चूंकि वापस आ जा रहा है इसलिए h/2 ही टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है पूरे के पूरे जर्नी में. दैट इज व्हाई नहीं नहीं, mgh/2. वो नहीं, मिस वो दूसरा भी वो है मेरे नहीं पास. करना. हाँ मिस हाँ, वो नहीं दूसरे करना है क्योंकि हाँ बेसिस दूसरे से भी से किए. मिस दूसरा तुमने तो ये कि दूसरे मिस, बेसिस से मुझे टेक्स्ट किया है, दूसरे मैसेज हाँ से मिस वही दूसरे मिस से मुझे मिस वो टेक्स्ट. पूरा हाँ. नीचे जाता है मिस. फिर तो ग्रेविटेशन मिस पूरा का फिर वो जब नीचे से ऊपर जाना होता है तो वो ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी के माइनस हो खिलाफ जाता वाला यूज नहीं करेंगे. अब हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन. तो वर्क डन में हम लोग क्या यूज पढ़े हैं? थीटा पढ़े हैं ना. कॉस थीटा यूज करेंगे और एंगल यूज करेंगे. देखो इसका आंसर कैसे लिखना है. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द क्वेश्चन. अब इसका आंसर कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ. पहले लेंगे फर्स्ट केस में, मतलब व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड. ये आंसर कैसे फ्रेम होगा? तुम लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बट आंसर कैसे फ्रेम करना है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. अब जब बॉल हिट कर रहा है तो हम लोग का वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, हमारे एफ की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. सबको पता है ये चीज. यस मिस. अब हमारा मास तो m है, मान लो, चलो हमने दिया नहीं था, मास m मान लिया ऑब्जेक्ट का. ठीक है, एक्सेलरेशन, ये बॉडी का एक्सेलरेशन जब 9.8. नीचे आता है 9.8, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल यस g. मिस. दिस इज आवर फोर्स. तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे F इज इक्वल्स टू mg. हाँ, s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पहले केस में ऑब्जेक्ट ने? h इक्वल टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज h mg h. अब cos थीटा, थीटा की वैल्यू मतलब थीटा क्या होता है? F और S के बीच में एंगल. तो मेरा F किधर है? फोर्स भी हम लोग इधर दे रहे हैं, बॉल मैं नीचे फेंक रही हूँ तो फोर्स मेरा इधर है. डिस्प्लेसमेंट बॉल किधर जा किधर रहा है? इधर ही जा रहा है. मतलब हमारा बॉल फोर्स भी इधर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर आ रहा है. मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0. 0 डिग्री. हाँ 0 डिग्री. तो हमारा फर्स्ट केस में कितना आएगा? mgh आ गया. तो इसको हम लोग दे देंगे W1. ये हो गया हमारा फर्स्ट केस में. ठीक है, इन द सेकेंड केस व्हेन, अरे यार, व्हेन द बॉल bounces back. Okay, when the ball bounces back, W is same, F S cos theta. ठीक है, अब फोर्स इज सिमिलरली इन द सेम वे m डॉट a इज इक्वल्स टू mg होता है. तो फोर्स की जगह हम लोग mg पुट कर लेंगे. s मतलब अब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मेरे ऑब्जेक्ट में? यहाँ तक गया है, मतलब h/2 होगा. हाँ, और cos थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स हम लोगों ने दिया था इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ ऑब्जेक्ट का? इधर. फोर्स हम लोगों ने फेंका था ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर हुआ. तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या, मेरा, चलो मान लो मेरी ग्रेविटी का किधर जा रहा है, ये वाला फोर्स कंसिडर नहीं करती, ये हम लोगों ने दिया, हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया. हमारा बॉडी का जो वेट है जो ऑब्जेक्ट का है, यहाँ पर इस केस से भी अगर पकड़ोगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट किधर काम कर रहा है? नीचे.
और ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बॉडी का वेट किधर काम कर रहा है, नीचे, बॉडी जा किधर रहा है, ऊपर, मतलब दोनों Yes, के बीच miss. में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, -1 -1। -1। तो ये हमारा हो सकता है -mgh/2। यस मिस। किसी को कोई डाउट? ओ गॉड, ये वाला शायद मेरे फ्रेम से बाहर हो गया। वेट 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 mgh/2 हुआ। हाँ मिस हुआ। Therefore, Yes, miss. इसको हम लोग W2 मान लेंगे। Therefore, टोटल वर्क डन कितना होगा, W1 प्लस W2। तो ये कितना होगा, mgh माइनस, सॉरी, प्लस ऑफ माइनस mgh/2 कितना आएगा, mgh/2। टोटल वर्क डन आया मेरा ये। Am I able to make you guys clear? ये पूरा Yes, पॉइंट मेरा miss. क्लियर हुआ? यस मिस, यस मिस। Yes, किसी miss. को डाउट? सुप्रतिम, No miss, no doubt. Misunderstood. कोई पूरा समझ में आया? Yes miss. अब मैं पूछूंगी तो मुझे समझा पाओगे? अरे बोलो भाई, सब चुप। हाँ मिस, समझा। मुझे कौन कौन समझा पाएगा? मिस हम पक्का। अच्छा, मैं मिस। पक्का। आहान और अपूर्वा का तो कंफर्म है। ये सुप्रतिम समझा पाओगे? चुप। ईशान, तुम्हारा कंसेप्ट कहाँ क्लियर नहीं था, वो समझ में आया? ये एमजीएच वाला कंसेप्ट तो था, बट माइनस प्लस वाला कंसेप्ट नहीं था, समझ में आया? ईशान, अगेन ही गॉट ऑन म्यूट मोड। यस, ओके। ईशान को क्लियर। सुप्रतिम, आई गेस ही म्यूटेड हिमसेल्फ एंड वेंट बैक। ही इज नो मोर इन आवर क्लास। नो इश्यूज। आर्यन, आर्यन तो था ही नहीं। Miss. आर्यन, तुम were you present when I gave you Yes, this miss. question? Yes, miss. Pakka, because I was not able to see you in my Yes, class. miss. I was present. Have you understood this concept Yes, miss. Completely. completely? And who else left? Abhijit? Yes, miss, I understood. Okay, चलो। ये तो मैंने दे दिया ऐसे ही। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेना कॉपी में अपने, ताकि समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन था, मतलब फ्रेम इट एज अ क्वेश्चन। I just gave you verbally, okay? Just frame it as a question and make this as a complete answer. Okay? यस मिस। Okay, चलो। चलो लिखो नीचे, मैं लिख रही हूँ, फिर जो लिख रही हूँ उसको लिखो। वेट, इफ द, उसके नीचे ही लिखना, हाँ। इफ द फोर्स इज variable, that is force varies during displacement, then work done is determined by plotting force and
ग्राफ। सब दिख रहा है सबको? हाँ मिस दिख रहा है। Okay. If the force is variable, that is, force varies during displacement, then work done is determined by plotting force displacement graph. हाँ मिस लिख लिया मिस। ओके चलो, सबका हो गया? हाँ मिस। अच्छा एक सेकेंड, वेट वेट गाइस। मिस आवाज कुछ ज्यादा ही कम है मिस, बहुत ज्यादा कम है। अभी 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 ठीक है? आई नीड टू शाउट। यस मिस। हाँ आई नीड टू शाउट, मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, मैं कब से चिल्ला रही हूँ, मैं इससे पहले भी क्लासेस ले चुकी हूँ, इसीलिए आवाज थोड़ी कम हो जा रही है। एक सेकंड रुकना प्लीज। मैंने जीरो वर्क डन का कंडीशंस लिखा दिया ना? हाँ मिस लिखा दिया। यस मिस, दो कंडीशन। हाँ ओके ओके चलो चलो चलो। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर फोर्स तुम्हारा वेरिएबल होगा, मतलब कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, ये बॉडी है मेरी, मैंने ये ब्लॉक ले रखा है, ठीक है, इसको अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स दूं तो भी ये मूव करेगा, मैं 50 न्यूटन फोर्स दूं तो भी ये मूव करेगा। तो मैं जब यहाँ से पुल कर रही हूँ इसको, तो सपोज sometimes I am providing it 15 न्यूटन फोर्स, sometimes I am providing it 25 न्यूटन फोर्स। मतलब what am I doing? डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, 10 न्यूटन से मैं कितना भी ज्यादा फोर्स दूं तो बॉडी ब्लॉक मूव करेगा ही करेगा। तो इफ आई एम प्रोवाइडिंग इट 15 न्यूटन फोर्स और 25 न्यूटन फोर्स और से 35 न्यूटन और 40 न्यूटन और 42 न्यूटन, तो द बॉडी इज मूविंग, और माइट बी 100 न्यूटन, द बॉडी इज मूविंग, बट व्हाट इज द फोर्स इज वेरिंग, डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूअसली द सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बॉडी का, बट फोर्स क्या हो रहा है हमारा, वेरी कर रहा है। इन दैट केस work done is determined by plotting the force and the displacement graph. अब कैसे होता है ये ग्राफ, साइड में बनाते हैं, ये साइड में दिख रहा है ना सबको? हाँ, दिस हम लोग y एक्सिस, x और y एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? x एक्सिस पे हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पे हम लोग लेंगे फोर्स। यहाँ पर मेरा वेरिएबल फोर्स है, तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मेरा चेंज हो रहा है। समटाइम्स द फोर्स इज वेट, sometimes my force is 10 newton, sometimes it is 20 newton, sometimes it is 30, sometimes it is 40. Similarly my displacement is 1 meter, 2, 3, 4, 5 accordingly. तो मेरा क्या हो रहा है, according to time मेरा ये चेंज हो रहा है, my distance and the displacement my force and my displacement are changing. तो इस केस में हम लोग वर्क डन कैसे डिटरमाइन करेंगे? इस केस में क्या होगा, जब टोटल वर्क डन डिटरमाइन करना होगा तो वी नीड टू फाइंड इट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से कैसे करेंगे, अब यहाँ से जो इसका एरिया होगा ना, इस एरिया में हम लोग डिटरमाइन करेंगे द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OBC, this complete area is our work done. Am I able to make myself clear? किसी को कोई डाउट है? और एक बार समझा। मैं थोड़ा इस एक बार और एक समझा। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या मिस फोर्स लग रहा है और इससे क्या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस बेसिस पर टोटल वर्क कैलकुलेट टोटल होगा वर्क ना। डन निकालना होगा। हाँ, अगर हम लोगों को टोटल वर्क डन निकालना है इस कंप्लीट प्रोसेस में, जहां से ऑब्जेक्ट मेरा शुरू करा था ओरिजिन से, मतलब 0 फोर्स 0 डिस्प्लेसमेंट से, ये पहुंचा है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, और फोर्स हमारा लग रहा है 50, आई गेस यहाँ से मान लो 50 है, तो हमारा टोटल वर्क डन इस कंप्लीट प्रोसेस में कितना होगा, वो कैसे निकलेगा? ये जो लाइन है ना, ये मतलब हमारा जो कर्व है, इसके थ्रू जो कवर्ड जो एरिया है
तो वो एरिया क्या होगा? द एरिया विच फॉल्स ऑन द एक्स एक्सिस, जो एरिया कवर्ड होगा हमारा, मींस दिस एरिया, दिस इज द ट्राइंगल OBC, this area is known as the work done in case of variable forces. Clear? Yes, miss. अपूर्व क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मिस। ओके चलो, अब मैं लिख रही हूँ, तुम लोग को लिखाने में ना आवाज की प्रॉब्लम होती है। चलो, द एरिया कवर्ड बाय द लाइन which represents, अच्छा, how many of future engineers are there in my class? किसको इंजीनियरिंग करनी है? किसी को नहीं? कोई आइडिया नहीं है मैं सभी। अच्छा, कोई आइडिया नहीं क्या करना है? तो साइंस क्यों लिया आप लोगों ने? हाँ, आप लोगों का तो साइंस आई गेस ICSE में पहले हो जाता है ना, साइंस क्यों लिया? मिस मेडिकल भी तो होता है ना मिस उसमें। मिस आहान का तो मैं शायद फिक्स्ड है मिस, वो तो इंजीनियरिंग ही जाएगा। मिस नहीं मेरे यहाँ मिस, मैं इंजीनियरिंग नहीं मिस, मेडिकल में जाऊंगा। मेडिकल में मेडिकल जाएगा। मतलब लेकिन मतलब क्या हुआ कि उधर में लाइन बहुत अच्छा है इसलिए। तुम मिस लोग हाँ का मिस सेम बायोलॉजी मेरा भी भी यही है? है मिस। मिस हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। मिस सेम मेरा भी यही है मिस, लेकिन मिस बायोलॉजी में मिस बहुत 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 करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। मिस हम लोग तो आईसीएसई में इससे हैं तो इसलिए मिस हम लोग को एक एडवांटेज है मिस रटने का। वरना सीबीएसई में होते तो हम कभी कंसिडर नहीं करते बायो में जाने का। बहुत रटना पड़ता है और बहुत बहुत ज्यादा बाय हार्ट करना पड़ता है। नया नया टर्म्स हर दिन 100 टू, जैसे हमको पता है। एग्जैक्टली तो फिर यू गाइस आर प्लानिंग टू बी इन ICSE ओनली फॉर +1 and +2? नो मिस, नॉट एट ऑल। you सीबीएसई guys will shift? मिस मैं तो करूंगा ही करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए मिस, बिकॉज आईसीएसई में रहेंगे तो मिस पूरा तबाह हो जाएंगे लिटरली। सिर्फ अपना सिलेबस का ही पढ़ते पढ़ते 12th चल जाएगा मिस। मिस आई विल नॉट बी एबल टू compete with the other students, miss not be able to do the preparations for competitive exams. So let me be clear to you guys. CBSE, अच्छा, Ishan will also try for medical. Very good. CBSE till 10 is easy compared to you guys. You guys are studying very hard. ICSE 10th syllabus is very much difficult. But CBSE class 11th and 12th, don't take it as that boon. It's not a boon. It's hell out there. I'm not scaring you guys. I am from a CBSE school and I'm having my cousin studying ICSE in class 10 only. I only teach him. Okay, I teach him online only. So he is also planning to shift to in the CBSE boards and I am from CBSE. So be very careful while shifting your boards. You need to be very much confident enough because commerce, I don't have any idea about commerce and humanities, but for the science section, CBSE is having a standard syllabus of +1 and +2. It's hell out to go in CBSE because I have been there. I don't know about ICSE, but as far as I know, ICSE is comparatively easy than CBSE for +1 and +2. So prepare yourself. Be very much prepared. मैम लेकिन जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिसएडवांटेज नहीं रहेगा क्या क्या क्या? जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम मोस्टली तो सब सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करता है ना। यही इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ICBSE में जाना बेनिफिशियरी है, बट ये सोच कर मिस वॉइस नहीं आ रहा। हेलो हेलो, यस मिस सब आ रहा है। अब आ रहा है। अच्छा, ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि CBSE में मत जाओ, बट अगर आप लोग ये सोच करके जा रहे हो कि CBSE 11 and 12 इजी है तो इट्स हेल डिफिकल्ट।
तो सीबीएसई में जाना इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज उसका जो सिलेबस है उसमें जाने के बाद यू विल गेट अ स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन फॉर द यूपीएससी वंस आल्सो। तो उसमें बिल्कुल भी कोई तुलना ही नहीं है. इट्स नॉट एनी कंपैरिजन विद एनी ऑफ द अदर बोर्ड्स आउट. एनसीईआरटी इज हैविंग अ वेरी स्टैंडर्ड सिलेबस, बट ये सोच के डोंट हैव द थिंकिंग दैट सीबीएसई विल फाइंड इजियर देन आईसीएसई. सीबीएसई इज वे मोर डिफिकल्ट. मीन्स फॉर +1 and +2 मैंने जितनी प्रॉब्लम्स फेस करी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू गाइज. आई डिड नॉट हैड एनी कोचिंग, बट स्टिल I got marks and I was the topper. I was the topper of this Asansol and Raniganj one. So Please repeat, please. Miss repeat, please, So, please. क्या रिपीट करूं? मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं. I was from the CBSE from starting only. From nursery only I have studied in CBSE. But to switch on to from ICSE to CBSE, go in a very planned way, study very hard. Don't think it is easy, because मिस I आप have also कैसे किए थे? पढ़ के किए थे और कैसे करेंगे. मिस कितना आया था मिस? मेरे को तो 95% आया था फिजिक्स में. मिस 12th में 12th हाँ जी 12th के सीबीएसई में आया था मुझे. मिस उसके बाद क्या किए? उसके बाद फिर आगे मैंने तो फिजिक्स लेके पढ़ाई करी ना. आई हैव डन माय कहाँ एमएससी. से? मैंने यूनिवर्सिटी से किया, ये वेस्ट बंगाल से ही करा था. ओके मिस. मैंने तो फिजिक्स लिया था ना. आई डिड नॉट अप्लाइड फॉर बायोलॉजी. I had to study physics because physics was my passion. So please be very. I was awarded for my results. I had my name and photograph in the newspaper also. So well, that's a different thing. But for 11th and 12th, it is very difficult. I had to face lots of problems. Being your teacher, I am confessing here right now that CBSE 11-12 is not easy. It's very difficult. But with proper guidance and proper studying concept. So from now only, from what I'm teaching you right now, so make it very easy. मतलब concept सारे clear होने चाहिए. अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना कि ये displacement का spelling displacement ही क्यों हो रहा है, why is CEMENT, ask me here only कि यहाँ पर displacement का spelling में K क्यों नहीं है. Means I am talking you in this way. अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, it might be very basic, but make the things very clear. I don't want that you guys, being my student, go and face some other difficulties in your higher classes. क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़ती हैं. बीइंग अ स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, सो आई एम ऑलवेज हियर. आस्क मी एनी डाउट इफ यू हैव. ओके, कोई है मेरी बात सुन रहा है या फिर आई एम डूइंग? यस मिस, राइट Yes, हियर. ma'am. Shock me, shock. Yes, ओके ma'am. ओके ओके, मैम चलो लिखो. हाँ बोलो. मैम तो कोटा वगैरह का क्या आपके व्यूज हैं? आवाज ही नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, तो आवाज ही नहीं आ रही है. मैम हेलो. आवाज नहीं आ रही है. चेक योर कनेक्शन. आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. हेलो, am I audible to हाँ you? मैम हेलो. आवाज नहीं आ रहा. यस मैम. अभिजीत तुम्हारा नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है. आई गेस किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है. अरे कोई है मेरी क्लास में कि नहीं है? मेरा ही प्रॉब्लम है. Yes, Yes, sir. ma'am. Answer. एंटरप्रेन्योर क्या होता है अभिजीत? मतलब एंटरप्रेन्योर हियर मतलब वो कुछ कहना चाह रहा है. आई गेस ही लेफ्ट एंड ही अगेन जॉइन. ओके, लेट हिम जॉइन. चलो, back to studies. The area covered by the line which represents the relationship between force and displacement gives the work done. Clear हुआ यहाँ पे? लिखा सब लोगों ने? Yes, miss. यस मिस. ओके. अरे यार, area of triangle OBC equals to work done. This equals to ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बोलेगा?
It's half into base अच्छा, into height. हेरॉन्स वाला मिस बहुत सारा होता है ना, इक्विलैटरल के लिए अलग, स्केलिन के लिए अलग। स्केलिन के हाँ लिए तो बस मुझे सिंपल वाला बता दो, सिंपल वाला बता दो जो जनरली यूज होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। और हेरॉन्स वाला Yes, किसी miss. को याद है? हाँ मिस, हमको याद है मिस। Miss, मेरे बोलो को- बोलो 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 मिस बोलो, कोई एक एस जन बोलो। सेमी पेरीमीटर। यस मिस। हाँ ऐसे सेमी पेरीमीटर, देन मिस होल स्क्वायर रूट ऑफ एस into s minus हम्म, a into s minus b into s minus c. वेरी गुड, चलो वेरी गुड। दिस इज हाफ इनटू, व्हाट इज द बेस? It's 5. हाफ इनटू बेस, नहीं बेस The मतलब, displacement means. हाँ फोर्स, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस इज डिस्प्लेसमेंट Yes miss. Yes. एंड हाइट इज फोर्स, Yes miss. Yes है ना? miss. Yes, फोर्स miss. है ना? Yes miss. हाँ तो ये हो गया तुम्हारा fs by हाफ 2. एफ एस, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, if the force is constant, अच्छा फोर्स कांस्टेंट होगा तो बताना तो इसका ग्राफ कैसे होगा। अपूर्व बुक नहीं देखोगे, बिना बुक देखे बताना। यू आर हैविंग योर बुक ओपन, Yes miss. बुक बंद करो Please. पहले। मिस ठीक है ठीक है। हाँ मिस, बंद है मिस। हाँ मिस, क्या बोले? हाँ आप बोलो कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट इधर एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मेरा हो गया फोर्स, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? मिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू, मिस द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। वेरी गुड, दिस विल बी माय। किसी को कोई डाउट? सुप्रतिम, ईशान, अभिजीत, किसी को कोई डाउट? नो मिस। पक्का ना पूछना, मैं बार बार कह रही हूँ। सी इसका नेटवर्क इश्यूज है आई गेस। आहान समझ में आया ना ये कैसे हुआ? हाँ मिस, मेरा तो समझ में आया। हाँ ओके चलो, अब क्या करना है? इसको मान लेते हैं BC। अच्छा अब इस केस में वर्क डन क्या होगा? इस इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। मैंने बोला था एक्स एक्सिस पे जो एरिया रिफ्लेक्ट करेगा वो एरिया होता है ये वाला, तो ये मेरा ये वाला एरिया होगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPCD। ओके, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? LB। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो Yes, लेंथ Miss LB. इज, हाँ तो दैट वुड बी F इनटू S होगा। लेंथ एंड ब्रेथ, हियर लेंथ एंड ब्रेथ आर F and S रेस्पेक्टिवली होगा। Yes, हाँ miss. मिस। इधर F है, इधर S है। अब लेंथ तुम किसी को भी पकड़ो, ब्रेथ किसी को भी पकड़ो, इधर तो F और S को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू FS। सॉरी, क्लियर? Yes, miss. किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा, कोई तो बोलो, कुछ तो पूछो मेरे से, कोई तो क्वेश्चन पूछो। कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? मिस, मेरा तो कोई डाउट नहीं है मिस, मेरा डाउट। तुम्हारा नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं किसी को नहीं, सबको पूरा क्लियर हो रहा है। और जिस दिन मैं पकड़ूंगी ना उस दिन मेरा भी डाउट तुम लोग सब क्लियर करोगे। मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी। आई हैव लॉट्स ऑफ डाउट, मुझे बहुत सारी चीजें अभी भी समझ में नहीं आती हैं। यू गाइस विल मेक मी अंडरस्टैंड। लेट मी कैच यू, लेट मी कैच ईच वन ऑफ यू, फिर मैं समझूंगी तुम लोगों से। वी हैव कितने टाइम बचा? और 5-7 मिनट है ना। Shall I start the next topic?
यस मिस मिस स्टार्ट कीजिए ना, हो गया। स्टार्ट करते हैं, जितना होता है उतना करेंगे, है ना? यस मिस। चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालो। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सब नोट्स बनाना अच्छे से। Let a body of mass m is moved down from a height h. The force of gravity acting, ये एक्चुअली मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, अभी MGH वाला क्वेश्चन में हमारा कवर अप हो गया था, बट स्टिल अगर तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है तो आई नीड टू कवर इट। ओके, acting on the body is vertically downwards. Is vertically downwards. F is equals to mg, and the vertical displacement is, sorry ये वाला is in the direction, अच्छा डायरेक्शन को शॉर्ट में कोई नहीं लिखेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is small h. Therefore W is equals to Fs, क्या होगा? बोलो क्या होगा? W equals to mgh। श्योर? यस मिस, क्योंकि बॉडी अंडर मतलब फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी के अंडर में है, तो एफ हो जाएगा mg, और एस मतलब हाइट, अगर डिस्टेंस हाइट मतलब एज कवर कर रहा है। वेरी गुड, दैट्स सो इम्प्रेसिव। mgh, very good. I love these students in the class who are very responsive and Miss, very attentive. बोलो। एक बार रीजन समझा देंगे? हाँ बिल्कुल समझा देंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, एक बॉडी है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड डाउन फ्रॉम अ हाइट h। एक हाइट h पर एक बॉडी है, उसको ऊपर से हम लोग नीचे लेकर आ रहे हैं, मतलब ये बॉडी यहाँ पर था, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे क्या, अब ये नीचे क्यों आ रहा है, मतलब इस पे जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल में ग्रेविटेशन चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हाँ, तो फोर्स का हमारा क्या फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है, F इज इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पे तो a की जगह g आ गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स हो गया mg, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, और हाइट हमारा कितना, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, h, स्मॉल h। तो वर्क डन का क्या होता है, तो वर्क डन की अंदर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बता दिया है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट में इधर में ही है, तो हम लोग का वर्क डन कितना होगा, F क्रॉस S, मतलब F इंटू एस। फोर्स हम लोगों का वैल्यू पता चल गया था, mg होता है, mg, और S मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा मेरी बॉडी ने, h, दैट इज mgh। क्लियर? यस मिस। किसी को डाउट? ये सुप्रतिम ने पूछा था, ईशान, अभिजीत, अभिजीत बेटा आप क्लास में रह करके अपना ये चेंज कर रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर। हाँ व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है हाँ क्लास में?
बोलो बोलो। हम कनेक्शन हो गए थे, क्या हमको कुछ क्या क्या सुनाई क्या नहीं दे क्या रहा, तो क्या बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? तो फिर समझ, क्लास में समझ नहीं रहे थे, मैं पढ़ा तो रही थी। वाईफाई वाईफाई बंद हो गया था, 2-3 मिनट तक आया, 2-3 मिनट बाद तुम टेक्स्ट करके बोलो, तुम्हारी आवाज समझ नहीं आ रही है। उतना चलो देर में चलो एक लाइन और लिखो यहाँ पर सब कोई, एक लाइन और लिखो सारे लोग। कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं, लिख लोगे? हाँ मिस, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ मिस। हाँ हाँ ओके, लिख देती हूँ। Similarly, if the body goes up, तो कितना होगा? W is equals to, बोलो आहान बोलो। मिस वो मतलब सेम ही होगा मिस, mgh होगा माइनस mgh। माइनस, लेकिन हाँ ये मिस। हाँ माइनस mgh होगा ना, क्योंकि वो यस 180 डिग्री वाला मिस, क्योंकि कंसेप्ट आ जा फोर्स रहा है ऑफ, ना। यस मिस, अगेंस्ट द फोर्स हाँ ऑफ। हाँ 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 हाँ। क्लियर हुआ सबको क्लास में? यस मिस, यस मिस। अच्छा, यस मेरी मिस। क्लास में किसी को कोई डाउट हो रहा है? नहीं मिस, कुछ भी नहीं, मतलब डाउट नहीं हो रहा। कोई डाउट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बेसिक क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, यस मिस, ईच एंड एवरीथिंग। टेकिंग फ्रॉम कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यूज, tan की वैल्यूज, एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू गाइस। अभिजीत has texted me something, wait let me check। मैम लाइट चला गया था तो वाईफाई बंद हो गया, मम्मी का फोन मिलने टाइम लगा तो वही पिक। ओके इट्स ओके, इट्स ओके। चलो कोई ना, कुछ भी करो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। यू गाइस डू एनीथिंग बट अटेंटिव टू द क्लास, एंड पढ़ाई में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। द प्रायोरिटी इज स्टडीज, रेस्ट ऑल द थिंग्स कम्स टू द सेकेंडरी। ओके चलो, क्लास समझ में आया? क्लास सबको क्लियर, अच्छा लगा? सब कुछ हाँ क्लियर मिस। हुआ? यस मिस। पक्का? यस मिस। अच्छा, फिजिक्स पढ़ने हाँ में मिस। मजा आ रहा है? फिजिक्स पढ़ने में या फिर बोरिंग लग रहा है फिजिक्स? मिस बहुत मजा आ रहा है मिस। हाँ मिस। मजा मजा आ रहा है तो बोरिंग तो नहीं लग हाँ रहा है? इट्स नॉट लुक, नहीं मीन मिस, सीम्स झूठा नहीं लाइक। बोलते मिस, झूठ नहीं Exactly, it's बोलते। not like maths class, miss. That's okay. मैथ्स क्लास में क्या मीन्स, यू हैव इश्यूज विद मैथ्स? No miss, no issues miss, miss लेकिन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ मिस, मिस, हाँ बहुत मैं, बोरिंग है। एक्चुअली मिस आज का जो क्लास है ना, मतलब वो तो पूरा इंटरेस्ट से करेंगे, क्योंकि मतलब टीचर बहुत अच्छा अच्छा से कंसेप्ट समझा थे, लेकिन मतलब कल का जो क्लास है ना, मतलब थोड़ा मतलब बोरिंग हो जाता है। ज्यादा एक्चुअली क्या है ना कि मैथ्स इज, आई विल नॉट से इट्स अ सब्जेक्ट इज अ बोरिंग, सब्जेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट एज कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट फिजिक्स इज रिलेटिवली मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि वी कैन रिलेट इट विथ आवर डेली लाइफस्टाइल्स। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री मिस, यही चीज हम बट सभी को बोलते हैं मिस। मिस लेकिन सब लोग बोलते हैं अभी तुमको पता ही कहाँ है फिजिक्स के बारे में। मिस दिस इज व्हाट आई से मिस, फिजिक्स हेल्प्स ऐसा अस सी व्हाट इज कुछ हैपनिंग नहीं है, अराउंड अस, एकदम ऐसा प्रैक्टिकली कुछ सब नहीं है। एग्जांपल्स। फिजिक्स बहुत कंसेप्चुअल चीज है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बट द थिंग इज कि अगर आपको फिजिक्स से प्यार करना है तो आपको कंप्लीटली डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर शोइंग इंटरेस्ट तो आप मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीटली अपना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, देन ओनली द फिजिक्स इज गोइंग टू लव यू बैक। दैट्स द डिफरेंस। ओके, if you guys want physics to love you back, then you will have to dedicate your 100% time, 100% effort and complete understanding from the basic, then only physics will love you back. Okay, क्या लिखा है ये? अभिजीत has written something, मैम बाहर पढ़ने for +2 like कोटा, एंड आपका क्या व्यू है? अच्छा कोटा, इट्स नॉट कोटा यार, इट्स कोटा, कोटा। अच्छा कोटा, एंड will say you in the next class, because इस पे मेरा थोड़ा different view है, and अभी मेरी next class है. Okay, we'll discuss it in our next class. I am having my next class. मैं पिछले 4 घंटे से I'm continuously taking class and I don't have any my voice. I'm going to die. Okay, so let's sum up our class here. From the next day we will study what we are going to study.
यूनिट्स करेंगे और फिर पावर करके चैप्टर को सम अप करेंगे. ओके, नोट्स अच्छे से बनाना सारे लोग. और क्या, हाँ मैं एक्स्ट्रा क्लास के बारे में ग्रुप में बता दूंगी कि कब करना है एक्स्ट्रा क्लास. आई गेस कल नहीं हो पाएगा, बट अगर येट कल होता है तो आई लेट यू नो इन द ग्रुप. ओके गाइस. Okay, miss. Okay, then let's sum up the class and see you in the next class. Till then, take care, huh? Okay, Be miss. safe and okay. Bye bye. See you, huh? Bye. Bye bye. Okay, miss. Thank you, miss. चलो, take care, huh?